have a lineup of events, exciting event coming up, men's 200 meter butterfly. Exciting race coming up for you. We are waiting for the starters and that race starts in with, as expected, San Prakash taking that half a body lead right at the start, using all his might, all his experience. He knows that this is the event where he can surely grab home his first medal, gold medal of the games. Milan, it's been surprising this day 4 and we are still yet to see Sargent winning his first gold medal. Yes, he holds the national record also of 156.38, so he should definitely be the favorite out here. Bikram Changmai got a silver in Rajkot. What a swim this is turning out to be from this champion from Kerala, the Olympian. What a swim that is coming, as you can see in his last 15 meters, he's going home strong. Well, way ahead from the rest of the field. San Prakash in there, touching the wall first with a timing of 1 minute 59.38 seconds. We'll wait and watch. Yes, that's a new game record by Sergeant Prakash. Showed his class right from the beginning. Kept that lead, sustained that speed. Look at the strategy, the way he went in. At the top. 200 meters butterfly, where the bronze was shared by Aryan Panchal and Harsh Sarova. He is from the paramilitary forces. Mr. Digambar Kamath doing the honors there. So Sergeant Prakash the gold. Bikram Changmai continues to get the silver which he got in the same event in Rajkot. We're now coming to the 200 meters fly for women. And as expected, a good start from the swimmers. Capitalizing on that first 15 meter start. Who keeps that lead, who sustains, like we saw with Sargent the last event. And what a swim that was from San Prakash, showing his class and composure, and first medal, tasting his first medal of the games, gold medal. Well, don't discount the Asa Chaudhary of Assam, who's giving her a big challenge. In 6 and 7, Virite Agarwal and Hashika Ramachandra. But yes, 219.29 is what gives her the gold. And that's the finish for this girl from Assam, Asta Chaudhary. Today, this morning, we are going to watch the high board, or known as the platform for women over 10 meters. In fact, the global governing body of diving is FINA, and this girl, so much expected from her. What a dive that was from Rutika Sriram, the former champion from Maharashtra, attempting reverse dive in B position. What a stretch that was. A nice leap and clean entry. She stayed calm throughout and she's got that entry cleaning in the water. And modern dive, good start, is important in diving. Will be inward 2.5 somersault in duck position. A good dive coming from Rutika Sriram, her last dive of the morning, and a good attempt. We'll see what will be the scoring for this. Palak Sharma, the last of the 5 divers here in the first set of dives. Palak Sharma will be attempting forward 1.5 somersault. Ready for the takeoff.
And that's forward 2.5, pardon me. And a good dive, a good movement in the air, in the pike position. A good start for Palak Sharma from MP. Yes, she's done well with 2 6s, 1 5.5, and 2 6.5. So, yes, she should be there on the leaderboard along with Ritika Sriram. In the event of diving, sport of diving will be marked over here. Preparing her takeoff. And there you could see 2.5 somersaults in C position, but slightly over at her entry. Brave attempt, but I'm sure Palak must have thought I could have entered the water, opened my dive a little more earlier, slightly over. So a decent score line, not too high, but a good start to women platform, and we come to the conclusion of women platform diving. Arm stand, 2.5 somersault. There you could see the diver taking that position, bringing herself in alignment with her dive. It's one of the toughest dive because the diver has to create that control, and a good attempt that was Milind, you know, with completing that revolutions in the air in comfortable distance from the water and entering in pretty well. When you watch this, the raw score is multiplied by a degree of difficulty factor in supervised training, and competitive diving is extremely low. And that's why I encourage the youth. And that's the next diver, Isha Wagmore, attempting reverse dive in the position. That looks simple, but requires lots of execution, awareness, entry, and I think the judges will give a good score to that dive. What a movement that was in the air. Precision. Ritika Sriram of Maharashtra, the girl who is defying the age, mother of a 3-year-old kid, Wagmore. What a wonderful human being, with a beautiful smile and a composure, a demeanor of a champion, demonstrating that Railways girl, but representing Maharashtra, Isha Wagmore goes on to win the gold. So we've seen upsets in the pool, whether it's swimming, whether it is Anamika from Kerala, Pavan Nagra, Sonu Balotia from Rajasthan, Deepika from Tamil Nadu, and Sonu Kumari from Haryana. That's the first race of the day. And we can see Deepika S is flying away. Will anybody be able to catch up? No, it seems Deepika has taken an unassailable lead, and she will finish so with a time of 14.62. Bib number 654 with the first win of the day. Deepika S from Tamil Nadu. यकीनन शुरुआत से जिस तरीके से दबाव बनाकर रखा और जो वो गति मेंटेन कर रखी, अब बस नजर है उस समय पर कि कितना समय उन्होंने निकाला है। तमिलनाडु की दीपिका एस पहले स्थान पर रही हैं और आधिकारिक समय की पुष्टि होती है हुई 14.65 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। लेन नंबर 5 से अनामिका जो हैं वो भी एक समय के लिए शुरुआती लम्हों में आगे चल रही थी, लेकिन दीपिका काफी आगे निकली और उसके बाद सोनू कुमारी से उन्होंने अच्छी खासी बढ़त बनाई और 14.83 सेकंड के साथ सोनू दूसरे स्थान पर रही, जबकि पवाना कर्नाटका की तीसरे स्थान पर रही हैं। And we are all ready for the first heat, the women's 800 meter. We're all set for the 800 meter race. 800 मीटर की रन की हीट की शुरुआत हो चुकी है और नजर बना के रखिए
पहली हीट पे 2 नंबर लेन से दौड़ रही हैं आयाना, लेकिन इस समय लीड करती हुई हीट नंबर 8 से विजया कुमारी. And here she is steaming ahead. That's Chanda Kim showing her power, and that's the horsepower which we've been talking about and which decimates the field time and again. That's Chanda Kim powering away, and the rest of the field is literally struggling to keep pace with Chanda Kim. And in another blistering finish there, not really exerting her enough, but that's enough for her to decimate the field and clinch the heats with a time point 2.07.26. Chanda Kim. ये रहे हैं 800 मीटर के हीट के वो कंटेस्टेंट. तो शुरुआत होती हुई 800 मीटर हीट की ये पहली हीट, और हीट नंबर 1 में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दबाव बढ़ता जा रहा है. जब शुरुआत हुई है शुरुआती पलों से ही. That's where we'll look at the final explosive speed. Will it be Pradeep Senthil? Of course it is Pradeep Senthil. It looks to be a 1-2 between Pradeep Senthil and Prakash Gadade. Will Gadade catch up? No, he doesn't. In fact, even Pradeep Senthil slowed down even before reaching the finish line, just taking a quick look back right behind him, but finishing it very, very easily. देखने को हमें मिल रही हैं. इन जनरल जो हम पढ़ते हैं वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर जो लेन है वो है राइट टू लेफ़्ट, और इसी के साथ ये चारों लेनों में 4 खिलाड़ियों की टीम एक ही बोट पर, और तेज़ी से शुरुआत की है. लगभग बराबरी पर चल रही हैं चारों टीमें. लेन नंबर 1 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लेन नंबर 2 में दिल्ली, लेन नंबर 3 में और लेन नंबर 4 में है सर्विसेज. जैसा मैंने कहा था वीरेंद्र जी कि ये बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली. देखिए अभी तक चारों टीमें नेक टू नेक चल रही हैं. क्लोज फिनिश होने के चांसेस हैं. हो सकता है फोटो फिनिश भी देखना पड़ जाए. अंपायर रेस को फॉलो करते हुए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली. देखिए कितना सुंदर दृश्य है. चारों टीमें एक दूसरे को टक्कर देती हुई, चप्पुओं की छाप. और इसी के साथ देख सकते हैं कि क्लियर कट हमें पोजीशन नज़र आ रही है. सर्विसेज पहले स्थान के लिए, और उसके बाद लेन नंबर 2 में दिल्ली, और लेन नंबर 1 में मध्य प्रदेश ब्रॉन्ज मेडल के लिए चप्पू चलाते हुए खूबसूरत शापोरा रिवर का ये फ्रंट. देखिए फिनिश लाइन की तरफ बढ़ते हुए सर्विसेज की टीम, दूसरे नंबर पे दिल्ली की टीम आती हुई, तीसरे में महाराष्ट्र की, और चौथे में मध्य प्रदेश की टीम आती हुई. हूटर बच गया है. पहला स्थान सर्विसेज ने प्राप्त किया जैसा कि उम्मीद की गई थी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे खिलाड़ी उसमें. दूसरे स्थान पे दिल्ली की टीम रही है, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में मध्य प्रदेश. अंपायर का फाइनल रिजल्ट आने का इंतजार. सर्विसेज ने पहला स्वर्ण जीता है मेंस कैटेगरी में 5 मिनट 29.14 सेकंड के साथ. दिल्ली दूसरे स्थान पे रजत 5 मिनट 31.19 सेकंड के साथ. इस समय महाराष्ट्र की टीम को कांस्य पदक प्रदान करते हुए ऑफिशियल्स, महाराष्ट्र की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेजेश शिंदे, ओमकार महास्के, मितिश गिल और अजय त्यागी. इन्होंने 5 मिनट 34.7 सेकंड का टाइम दिया और कांस्य पदक जीता. अब रजत पदक जीता दिल्ली की टीम ने, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे सुनील अत्री, उज्जवल कुमार सिंह, मनीष और रोहित. इन्होंने 5 मिनट 31.1 सेकंड का टाइम क्लॉक किया. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिल्ली की टीम का. अच्छी टक्कर दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सर्विसेज की टीम ने स्वर्ण जीता. सर्विसेज की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, जाकर खान और सुखमीत सिंह, जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में भारत को पदक दिलाया. ऑफिशियल्स स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए मेंस क्वाड्रुपल स्कल्स सर्विसेज की टीम बहुत ही उम्दा रोइंग का प्रदर्शन किया. बहुत कुछ सीखने को मिला नए रोवर्स को.
पहली लेन में उत्तर प्रदेश, दूसरे में मणिपुर, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में केरला। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है चारों टीमों ने, लेकिन इस समय केरला की टीम और मध्य प्रदेश की टीम थोड़ी सी लीड लेती हुई बाकी दोनों टीमों से। पहला मुकाबला है, गोल्ड मेडल का ये मैच है। जो भी टीम इसको जीतेगी मुकाबले को गोल्ड मेडल से मिलेगा। लेन नंबर 1 में उत्तर प्रदेश, लेन नंबर 2 में मणिपुर, लेन नंबर 3 में मध्य प्रदेश और लेन नंबर 4 में है केरल। क्योंकि पहली लेन में है उत्तर प्रदेश की टीम, दूसरी टीम में मणिपुर, तीसरे में मध्य प्रदेश लीड लेती हुई। केरला की टीम को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए मणिपुर ने लीड ले ली है। पहले मध्य प्रदेश और केरला की टीम आगे चल रही थी, लेकिन मणिपुर की टीम ने अपने को कंसोलिडेट किया। पूनम और रुक्मणी का ये पेयर डबल मुकाबला है, ये विमेन का, रोइंग का। और जो अब अंतिम समय में ये रेस पहुंचने वाली है, तो जो और इसी के साथ ये फिनिश लाइन मध्य प्रदेश ने किया है फिनिश टॉप, और उसके पीछे मणिपुर और फिर केरल। उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ते हुए इस मुकाबले में, ये देखिए, और हुटर की आवाज। और इसी के साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश की टीम ने पहला स्वर्ण जीता है आज 6 मिनट 44.64 सेकंड के साथ। सेकंड पोजीशन पे मणिपुर रही है, थर्ड में केरला रही है और चौथी पोजीशन में उत्तर प्रदेश की टीम रही है। मेंस फ्री स्टाइल, सत्येंद्र निषाद छत्तीसगढ़, उदित फ्रॉम हरियाणा, अच्छी देवी फ्रॉम राजस्थान। The referee trying to make a start, couldn't get a grip. ब्लू कॉर्नर पर हैं उदित, रेड कॉस्ट्यूम में हैं सत्येंद्र, और यहाँ पर अंक मिलेगा। जी हाँ, घुटने मैट पर टेक डाउन किया था और 2 अंक आते हुए उदित के नाम। ग्रिप बनाने की कोशिश चल रही है और यहां पर लेग होल्ड करना चाहते थे, लेकिन बढ़िया डिफेंस आता हुआ इस बार जरूर अंक मिलेगा। 2 अंक और मिलते हुए उदित को। पीछे से अटैक किया था और अब यहां पर भार अंदाज लगाने की कोशिश चल रही है। 1 टर्न आ चुका है, 6 अंक मिल चुके हैं। ग्रिप तो देखिए बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ। एक और टर्न, 1 टर्न और 8, 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को फिनिश करने से उदित। क्या 1 टर्न यहीं पर आएगा? जी हां, मुकाबला संभवतः फिनिश होता हुआ 10 अंक हो गए हैं उदित के नाम और उदित ने तकनीकी दक्षता के आधार पर इस मुकाबले को जीत लिया है। पंजाब रेड, तमिलनाडु ब्लू। साहिल हैं पंजाब के, वजन वर्ग है 97 किलोग्राम। सुगुल हैं तमिलनाडु के। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि मुकाबले थोड़े ठहर के आ रहे हैं। लेग होल्ड बनाने की कोशिश, जी हां, पीछे से बना लिया है, अटैक किया है। दोनों घुटने मैट पर थे, 2 अंक मिल गया है। 1 टर्न के 2 अंक मिल गए हैं। भार अंदाज लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रणनीति देखिए वहां पर सुगुल की। जान गए थे कि ग्रिप बना ली है, टर्न करके मुकाबला बहुत जल्द फिनिश कर देंगे। तो जो येलो सर्कल है, यानी जो प्लेइंग एरिया है, उससे बाहर चले गए। एक बार फिर ग्रिप बनाने में कामयाबी मिली है। एक और 2 पॉइंट, 1 टर्न के 2 पॉइंट। मुकाबला कभी भी समाप्त हो सकता है। एक और टर्न, मुकाबला समाप्त हो गया है। पंजाब के साहिल सिंह ने पलक झपकते इस मुकाबले में अपना परचम लहरा दिया है और सुगुल को मात दे दी है। तमिलनाडु के सुगुल। Amol Bongade of Maharashtra and Anil Singh of Jammu and Kashmir in blue. Red Maharashtra, blue Jammu and Kashmir. And immediately Amol Bongade getting a grip. Not low point scored, yes. 2 for red. Amol Bongade now. लेग होल्ड बनाने की कोशिश, ग्रिप पीछे से बना लिया है।
टेक डाउन के क्या अंक मिलने वाले हैं? ग्रिप बनाते हुए, मुश्किल में पड़ते हुए यहां पर अनिल सिंह, नजर बनाए रखिएगा। टर्न करना चाहते हैं लेकिन ग्रिप वैसी है नहीं। 8 अंक तक पहुंच गए हैं, 2 अंक और चाहिए। मुकाबला कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन जी हां, टर्न आया है और मुकाबला समाप्त हो गया है। एक और मुकाबला जो पहले राउंड में ही समाप्त होता हुआ महाराष्ट्र के अनमोल बोंगाड़े ने जीत दर्ज की है अनिल सिंह के ऊपर तकनीकी दक्षता के आधार पर 10-0। It's Arjun Lohan of Uttarakhand in red, Amar Naik of Goa in blue. शुरुआत 2 अंक, उसके बाद एक टर्न, भारंदाज एक और टर्न, मुकाबला लेकिन बाहर चले गए थे। 6 अंक तो जुटा लिए हैं। सेकंड्स कितने बीते हैं? सिर्फ 15 या 16 सेकंड्स में 6 अंक हासिल कर लिए हैं अर्जुन लोहान ने उत्तराखंड के। उत्तराखंड जहां पर अगले राष्ट्रीय खेल का आयोजन होना है। एक और ग्रिप, एक और टर्न, मुकाबला समाप्त। लगभग 8 अंक मिल गए हैं। ऐसा लगा कि एक और टर्न हासिल कर लिया और 10 तक पहुंच गए। बहुत तेजी में है, हड़बड़ी में है, मुकाबला जल्द फिनिश करना चाहते हैं। Once again going for the dive, trying to get a leg hold, but Amar Naik is coming back. Will we see a comeback from the local wrestler? Can he get his first point? We are still in round number 1. And now it is win by fall, win by fall. चितपट कर दिया यहां पर पहलवान अमर नायक को, छत दिखा दी और मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया है चितपट के आधार पर। What an ambience here in this multi-purpose ground tennis arena in Fatoda, Goa. Suraj Prabodh serving. With those deep returns, Suraj Prabodh ultimately getting an error from Manish Racket. He didn't allow him to approach the net, kept him pinned behind the baseline there. You can see that. He seems to be very agile despite his cramping yesterday. Wonderful passing shot from Manish, which was preceded by a delicate drop shot. As you can see, Suraj was way back behind the baseline. Fault under pressure now, down 2-4. He needs to get his serve in, try to hold his serve. How nicely is changing the angle, Manish. There again, that is what is setting up the point here. 3 break points straight away. Absolute display of aggression from Manish, as you can see, really not holding anything back. With this, Manish wins 6-3, 6-2 against Suraj Prabodh of Karnataka. So Tamil Nadu win the first singles in this men's team event final between Tamil Nadu and Karnataka. Well-deserved victory for Manish. He displayed super aggressive shots today. ये सेमीफाइनल मुकाबला है। फिजला फातिमा कादरी, परनाज चीपिया वर्सेस कौशनीनाथ सागरिका मुखर्जी। First match, Gujarat to serve.
फातिमा की सर्विस के साथ गेम की शुरुआत हुई। इस बार बहुत बढ़िया प्लेसमेंट। गेम नंबर 2 की शुरुआत हुई है। अच्छा रिटर्न दिया था लेकिन वापसी वहां से मुश्किल था। लगातार बेहतर मौका है इस दूसरे गेम में वापसी करने का। और वही करती हुई बंगाल लीड्स 2 games to 0. Third game गुजरात to serve. तो तीसरे गेम की शुरुआत होने जा रही है परनाज की सर्विस के साथ में। एक आसान रिटर्न को नेट पर खेल गई फातिमा की सर्विस। सर्विस पर पॉइंट अर्जित किया फातिमा ने। 10-6 परनाज की सर्विस है। सर्विस का लाभ उठाइए, पूरे मनोयोग से कोशिश कीजिए। मिला, रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक था, जल्दबाजी थोड़ी ज्यादा कर दी। देखिएगा सागरिका, इस गेम में दूसरी बार ऐसा देखने को मिला है, सागरिका ने अपना बैकहैंड ब्लॉक जो है बाहर खेला है। लीजिए, ये वो अंक आ गया जिसकी तलाश थी। तो इस जोड़ी ने फाइनल में जगह पक्की कर ली, 3-0 से हराया गुजरात की जोड़ी को। ये कंफर्म स्कोर लाइन 11-7, 12-10, 11-7। मुक्केबाजी मुकाबलों का आयोजन किया जा रहा है। अमाल उदय केरला के मुक्केबाज रेड कॉर्नर में, ये हैं मणिपुर के मुक्केबाज। राउंड 1 और पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। रेड कॉर्नर में है केरला के मुक्केबाज और ब्लू कॉर्नर में है मणिपुर के मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। पहला राउंड प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर स्लिप हुए केरला के मुक्केबाज, रेफरी द्वारा उनके ग्लव्स को साफ करवाया गया। अपर कट मारना तो चाह रहे हैं मगर अपर कट का प्रयोग नहीं किया मणिपुर के मुक्केबाज ने। ये उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है क्योंकि अपर कट और हुक का जो प्रयोग है वो बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस पर किया जाता है। जब आप अपने प्रतिद्वंदी के बिल्कुल नज़दीक आ जाएं तब आप टोस पर घूमें और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करें, थोड़ा सा झुकें। और ये मेरे ख्याल में अभी फिर ये फिर पंच लग गया उसको ये। और यहाँ पर इस पहले चक्र की समाप्ति हो चुकी है, 2 बार काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल दूसरा राउंड प्रारंभ हो चुका है और इस मुकाबले में यहाँ पर बढ़त बनाने की कोशिश कर ली है मणिपुर के मुक्केबाज ने। पहले अपर कट का प्रयोग करना चाहा मणिपुर के मुक्केबाज ने, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मणिपुर के मुक्केबाज को लॉन्ग डिस्टेंस में खेलना चाहिए, अभी नज़दीक जाना ही नहीं चाहिए उसके। और साइड में निकले, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था वो। अभी थोड़ा स्लो है, जब प्रेशर नहीं बनाएगा उसके ऊपर तो गार्ड रख के और बिल्कुल आगे और कंटिन्यू पंच चीज के साथ में जाएगा तभी बात बनेगी। वो शेल गार्ड के साथ पुश कर रहा है, पंच कम निकाल रहा है वो, और यही कारण है कि वो पीछे रह रहा है, बॉक्सर पिछड़ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। कार्यरत थे और यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज ने अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत लिया है। 5-0 से उन्होंने इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया। हिमाचल प्रदेश के ये मुक्केबाज रेड कॉर्नर में और उनको चुनौती दे रहे हैं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज रोशन सैनी राजस्थान से। और पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं MS ढाका जी, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं और भारतीय मुक्केबाजी संघ में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर कार्य कर चुके हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम के साथ उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो रणनीति क्या अपनानी चाहिए यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज? ब्लू कॉर्नर को बॉक्सर को आगे, वो रेड कॉर्नर का बॉक्सर पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और उसको ये वेरी गुड साइड स्टेप लिया रेड कॉर्नर के बॉक्सर ने। राउंड 2 और ये दूसरा चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर दोनों ही मुक्केबाज
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है, वो अनुभव यहाँ पर आज कितना अप्लाई करते हैं, आज का प्रदर्शन उनका कैसा रहता है, ये विशेषता रखता है। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कोई मान्य नहीं रखता। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुक्केबाज, सर को नीचे डाल रहे हैं। ये उनके लिए स्वयं के लिए एक नुकसानदेह होगा। अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला। बिल्कुल तीसरा और आखिरी राउंड भी समाप्त हुआ यहाँ पर। Ladies and gentlemen, the winner by unanimous point decision is in the red corner representing Himachal Pradesh. रेड कॉर्नर के मुक्केबाज ने इस मुकाबले को जीत लिया है। अंकों के आधार पर इस मुकाबले को 5-0 से, यानी कि पांचों ही जजेस को अपने खेल कौशल से प्रभावित कर पाने में कामयाब हुए हैं।